नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि सीएससी बीएलई को ग्राम प्रधान बनाने की बात दिनेश त्यागी सर के द्वारा लाइव किया जा रहा है। तो चलिए आज हम इनके द्वारा जो बात कही गई है लाइव उसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष ठाकुर है और आप देख रहे हैं टेक ठाकुर जी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब यूपी में पंचायत इलेक्शन हुआ तो 56 ऑफ दी VLEs एक्चुअली कंटेस्टेड इलेक्शन बिकेम प्रधान। There's a girl in Rajasthan, I met her, she said, गांव वाले ने बोला बेटी तू इतना अच्छा करती है काम, तेरे कोई प्रधान बना देते। Thank you so much. First, thanks the Professor Kannan, Professor Sudarshan, and the entire faculty of IIT Kanpur. On behalf of all these young entrepreneurs, I actually thank you so much for inviting us at IIT. These are all young people, live in villages and build a social enterprise. And they have set an example, very amazing people. I think passion, commitment, conviction is what drives them. They are unique. गांव में रह के बिजनेस चलाना बहुत आसान नहीं है. There are challenges, there are difficulties, and they overcome these difficulties in what Professor Sudarshan said, Jugaad, the frugal innovation. They do a lot of frugal innovations. That is the core of what the Common Service Center entrepreneurs do it. I have seen many of them using 2 data cards and trying and assimilating together in order to increase the bandwidth for using that part of the work. Seen sometime the bandwidth is not available, he go to the rooftop and do that work. Sometime in the evening he try and operate the system in order to extend services. These are, as I said, when we started the Common Service Center, at that point of time, a lot of people used to say, bandwidth nahi hai, connectivity nahi hai, and there are problems. But today, I don't think we created this young, energetic entrepreneurship who are now not questioning that. There are challenges, and there will continue to be challenges because of this such a diverse nature of our country and so much of geographical features. We will still, but I think they now work out a mechanism in order to serve the community. The objective is one, अपने आसपास के लोगों को कैसे मदद करनी है. That is the core what drives them. And many of them built huge credibility in the system. As Dr. Piyush Gupta mentioned, CAC started as the digital access point for enabling government to deliver service to citizen. शुरुआत ऐसे की थी कि हम सरकारी सेवाओं को लोगों के पास कैसे दिला सकते हैं. भारत सरकार का भी मॉडल था. सरकारी सेवाओं से सोशल एंटरप्राइज या बिजनेस बन सकता है, ये बड़ा चैलेंज है. नहीं हो सकता. We realize this, that only with government service delivery you cannot make a good sustainable commercial model for long-term sustainability because the footfalls are very low. कितने लोग आके बर्थ सर्टिफिकेट लेंगे, कितने बैंडविड्थ लेंगे. An average you get on 5 in a village, and on a day it is not very easy to try and build an enterprise. So we said, let's look at outside government. Government services will be enabler. And we look into the business to citizen services for trying and doing that part of the work. And today, 90% of the service or business of the social of VLEs actually come from non-government services. And that is what we created them. And since they built the image and the credibility, their ability to mobilize community is very high. ये लोगों में विश्वास जगा सकते हैं. In fact, we were just looking at some numbers. Last time, जब यूपी में पंचायत इलेक्शन हुआ तो 56 ऑफ दी VLEs एक्चुअली कंटेस्टेड इलेक्शन बिकेम प्रधान. There's a girl in Rajasthan, I met her, she said, गांव वाले ने बोला बेटी तू इतना अच्छा करती है काम, तेरे कोई प्रधान बना देते. And that is what, there are many of them. Chhattisgarh has about 56 of them contested and did that part. Rajasthan is unique, of course. वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको लोगों ने नॉमिनेट करके इस पार्ट में.
So the point is not that we want to ask them to become Pradhan. The kind of work they do in the community has built so much of credibility, the community recognizes them. And that is how this enterprise is built in. It is not built in because they deliver government services. सरकारी सेवाएं देते हैं इसलिए नहीं, लोगों की मदद करते हैं इसलिए रिकॉग्निशन है. 1 लाख महिलाएं हैं जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाती हैं, एंड एज यूजुअल दे आर बेटर देन मैन, देयर इज नो डाउट. वो बदमाशी कम करती है, देयर क्रेडिबिलिटी इज हायर. और हमारा सीएससी में काम इज मल्टीटास्किंग है. आप बैंकिंग भी करते हो, इंश्योरेंस भी करते हो, पेंशन भी करते हो, टेलीमेडिसिन भी करते हो, एजुकेशन भी करते हो, सरकारी सेवाएं भी करते हो. ये मल्टीटास्किंग इज बेस्ट सूटेड टू वुमेन. वो तो सबको सारी जिंदगी मल्टीटास्किंग करती है, एंड दैट इज व्हाई वुमेन सूट्स वेरी वेल इनटू द सीएससी इकोसिस्टम. तो हमारा मकसद तो है कि हमारे गांव में एक महिला को सीएससी के साथ जोड़ दें इन सम ऑफ द अदर. 6 लाख गांव में 6 लाख महिलाएं हों जो हमारे देश में सीएससी के साथ जुड़े. फिर सीएससी की जो तस्वीर है, जो उसका इमेज है, जो उसका कंट्रीब्यूशन है, विल बी वेरी सिग्निफिकेंट. और महिलाओं ने बहुत अच्छा किया. आई हैव सीन मेनी सेंटर्स ऑफ द वुमेन. 1-2 तो महिला हमारी ये बच्ची है, शी हैज डन वेरी वेल. आई नो फ्यू ऑफ देम वेरी वेल बाय नेम एंड आई हैव गॉन द सेंटर्स. आई हैव नो डाउट इन माय माइंड, by nature these women and also the rural people are inherently enterprising. Indians are actually very enterprising. Siraf what is required is some kind of support and motivation and an ecosystem who try and help them in doing that part. फिर 2-3-4 हमारा पर्पस भी है कि हम सबको एंटरप्रेन्योरशिप बनाएं. और जैसा प्रोफेसर काने ने कहा, आज एक एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स भी है, एक लेक्चर है, तो आप उसको सुनना. लेकिन हमारी जो एनालिसिस है वो शोज दैट गोयल, बंसल, अग्रवाल और गुप्ता डू एक्सीडिंगली वेल. व्हाई डू दे डू एक्सीडिंगली वेल? आई डोंट नो. बट इफ इन आवर टॉप VLEs we identify and do analysis of it, what we keep on doing, we find these guys are doing it phenomenally. The guy in Chhattisgarh is a handicapped guy. His last year turnover 8 crore rupees. He's got 20 people employed. He's got 25 computers. But he is an Agarwal. The chap who's read Sanskrit throughout his life, he is actually Acharya in Sanskrit. 4 years before Reliance Computer started doing computer training program and started a CSC, his last year turnover 3 crore rupees. He is a Jain. So this Gupta, Jain, Agarwal do phenomenally well. So हम सबको इनको क्या करना है? गुप्ता, अग्रवाल, जैन और सरदार जी बनाना है, and that is what our objective is. That is what entrepreneurship is. वही करना है. I think बहुत अच्छे बच्चे हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम हैज बीन डूइंग वेरी वेल. और आज 5,50,000 है, 5,50,000. द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ डिजिटल एक्सेस पॉइंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट इज इन CSC. और देश में बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सारे काम करते हैं. भारत सरकार का कोई भी मिनिस्ट्री नहीं है जो CSC को यूज नहीं करना चाहता है. We did a economic census first time using digital tools for 40 crore household. इन बच्चों ने किया. We are doing 6 lakhs villages cultural survey through these people across the country. हमने भारत सरकार को बोला था, आप सेंसस को 10 साल में एक बार करते हो, 15,000 करोड़ करते हो, आप हमें 5,000 करोड़ कर दो, हम हर साल कर देंगे. But technology and our foot soldiers are phenomenal, they can do it. But besides all the CSE, today's our focus is on education. और जैसे मैं बोलता हूँ, हमारे CSE की फाउंडेशन ही एजुकेशन है. एजुकेशन ही हमारा आधार है. अगर हम एजुकेशन में, एक तो एजुकेशन में सबसे बड़ा एडवांटेज, सरकार से कोई लेना देना नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई टेंशन नहीं, एंड यू यूज टेक्नोलॉजी इन डूइंग इट. हमने एजुकेशन क्यों शुरू किया, किसके लिए शुरू किया, दैट ऑल्सो इज द स्टोरी. हमने उनके लिए शुरू किया जो बच्चे गांव में वीक हैं, कमजोर हैं, जिनके माँ बाप कहते हैं तू फेल हो जाता है तो घर में बैठ जा, उसके लिए. जो बच्चा फेल हो जाता है उसके लिए, जो बच्चा और बच्ची स्कूल में नहीं जा पाते हैं उसके लिए. तो हमने वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी किया जो ट्रेडिशनल सिस्टम से नहीं होता है. इस देश में 30% बच्चे सिर्फ कॉलेज में एडमिशन मिलता है, 70% नहीं मिलता है. क्या करेंगे वो, व्हाट डू वी डू?
सो दिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए सीएससी एकेडमी बनाया था, और सीएससी में एजुकेशनल सिस्टम बनाया था। वीक है, फेल हो गया है, कमजोर है, पढ़ नहीं सकता, या किसी कारण गांव वाले घर वाले उस लड़की को स्कूल और कॉलेज में नहीं भेज सकते, उनके लिए सीएससी बनाया था। एंड दैट इज व्हाई वी स्टार्टेड एजुकेशन। और हमने कहा एजुकेशन में फर्स्ट टाइम इन द कंट्री वी स्टार्टेड a digital literacy program of 6 crore people. We already done fairly large number of them to digital literacy. हमने ये भी रियलाइज किया कि आप पढ़ाने के साथ साथ एग्जाम भी वहीं लो, क्योंकि उस बच्ची को एग्जाम देने के लिए आप 200 किलोमीटर बनाते हो, इज वेरी डिफिकल्ट। सो वी एक्चुअली बिल्ड फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री ए रिमोट प्रोक्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम। और आज 3.5 करोड़ बच्चों का जो एग्जाम हुआ है वो रिमोट प्रोक्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस हमारा रिमोट प्रोक्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम यूज करता है, एंड दे ऑल्सो कंडक्ट एग्जाम फॉर देम। थोड़ा विश्वास करना चाहिए। मुझे लगता है हमने सोचा कि फिजिकल में शायद नकल ज़्यादा या कम होगी, वो छोड़ दीजिए, आप रिमोट प्रोक्टिंग फार मोर इफेक्टिव। वो ब्राउजर कंट्रोल है, गर्दन हिलाता है, शेडो आती है, मैं उसको फेल कर देता हूँ, विच यू कैन डू नॉट इन अदर फिजिकल सिस्टम। So we actually insulate you, technology can insulate you from larger risk, but help that girl or the boy who is there in a village to appear for the exam, study there and try and reform ourselves. That is what CSE is built on education. तो CSE में education के लिए इसे शुरू किया था, और हमें लगता है हमें अभी बहुत कुछ करना है। अभी नई चीज़ें जो आ रही हैं, it is not necessary for you to study a subject and not be able to do, you may not be necessary to be a computer engineer and to do coding. आप 12th फेल और 10th फेल भी कोडिंग कर सकते हैं। हमें वो 10वीं फेल वाले बच्चे को कोडिंग सिखा के कोडर बनाना है, एंड दैट इज व्हाट वी विल ट्रांसफॉर्म across the world. उसको सी डोंट अंडरस्टिमेट द इनहेरेंट नॉलेज ऑन द पीपल। मैं बहुत सारे लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, मैं ट्राइबल एरियाज में बहुत काम किया, तो आई यूज्ड टू गो टू ट्राइबल एरियाज एंड दिस बॉय यूज्ड टू गो विद मी। वो मुझे बोल देता था, सर जल्दी चलिए, 10 मिनट में बाद बारिश आएगी। एक्चुअली 10 मिनट के बाद बारिश आती थी। he was knew everything about it. He has no studied anywhere. He will hear the sound of the bird and tell me that this is the bird. I can guarantee you an MSc geology student from Delhi University cannot even identify birds, but he does that part. He will identify every plant and tell you about the plant. तो हम उसकी नॉलेज को, नॉलेज एंड एजुकेशन आर डिफरेंट, हम उसकी नॉलेज को अप्रिशिएट करते हैं। वी आर ट्राइंग इन हार्नेसिंग द नॉलेज इन ऑर्डर टू बेनिफिट द कम्युनिटी एंड मेकिंग ए बेटर पर्सन इन द सोसाइटी। यही मकसद है। CSE एकेडमी इनहेरेंटली रिकॉग्नाइज करती है दैट द टैलेंट एग्जिस्ट इन एवरीबडी, एवरी इंडिविजुअल इन दिस कंट्री, वेदर ही लिव इन ए विलेज और वेदर लिव इन ट्राइबल एरियाज। उस टैलेंट और उसको हार्नेस करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से how do we improve the quality of life of that person is what are our challenges, and that's why we created CSEs for this part of the work. Spoken tutorial is a great opportunity. बहुत अच्छा है। प्रोफेसर कन्नन का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे याद है मैं बहुत पहले एक बार प्रोफेसर कन्नन से एयरपोर्ट पे मिला था, when he is actually we were to meet and then he was going to, he said मैं एयरपोर्ट पे हूँ आप आ जाइए। तो I went and met him at the airport, outside the airport, and then we discussed at the time when he was doing this spoken tutorial, and 2-3 चीज़ें हमने शेयर की थी उनसे, and they built in that assessment और certification. I think that is now built in because end of the day जिसको सिखाते हैं वो assessment और certification भी चाहता है, and today is possible. But a spoken tutorial is wonderful. It has almost everything. First गांव के बच्ची को प्रोफेसर कन्नन के साइंड सर्टिफिकेट IIT का जब मिलता है, look at the change in the face of that girl and the boy. What a confidence she creates. तो सारे बच्चों से आज रिक्वेस्ट है, हम लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं किए हैं, हम लोग either our ability to market or our ability to try and convince you, सब लोग स्पोकन ट्यूटोरियल का एक अपने आप ले लेना। बहुत लोगों ने लिया है, बहुत लोग अभी नहीं लिए हैं, लेके करना। और हमने उनसे फीस को भी स्टैगर्ड करा दिया है, क्वार्टरली करा लिया इन ऑर्डर टू लुक एट योर रिक्वायरमेंट्स। आई थिंक स्पोकन ट्यूटोरियल इज वंडरफुल। और दूसरा, अपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा देना, स्पोकन ट्यूटोरियल IIT मुंबई कोर्सेज। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन इट विल हैपन टू योर सेंटर, इट्स जस्ट यूनिक। बहुत अच्छा होगा, आपकी इमेज, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके सेंटर की क्वालिटी विल इम्प्रूव
significantly when people come and do it. So जो बच्चे बच्चियाँ नॉर्मली स्कूल में रहते हैं या कॉलेज में नहीं जा सकते हैं या उनके पास कंप्यूटर की अदर नहीं है या उनके पास कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो आपके यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं एंड यू कैन हेल्प देम. बहुत ही अच्छा डिजाइंड है, एज प्रोफेसर कन्नन से इट्स डिजाइन कीपिंग द नीड ऑफ द कस्टमर और द स्टूडेंट, तो उसके लिए बहुत अच्छा है. आई थिंक वी मस्ट डू स्पोकन ट्यूटोरियल लिटिल मोर एग्रेसिवली. हमारी 6000 अकेडमीज हैं, ऑल द 6000 अकेडमीज शुड रन द स्पोकन ट्यूटोरियल एंड गेट फर्निश इन दैट फैशन. पीयूष जी थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हम थोड़ा ब्रांडिंग कर देते हैं सो दैट एटलीस्ट दे हैव अ वैल्यू क्रिएशन फॉर देम. इन द लास्ट प्रोफेसर सुदर्शन ने बोला था कि यहाँ पर बहुत सारा रिसर्च होता है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी है रूरल इंडिया की मदद करने के लिए. सर आई विल रिक्वेस्ट यू कि आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं आप उनको कमर्शलाइज करने के लिए हमारे बच्चों की मदद कर दीजिए, हम बना देंगे इसको. तो वी कैन आइदर साइन सम एग्रीमेंट, और हमें पता है इन बच्चों को समस्याएं पता है, आपकी जो बनी बनाई हैं उनको हम कैसे ठीक से फाइन ट्यून करके उसका एक कमर्शियल मॉडल बना सकते हैं दैट इज सेलेबल टू द कम्युनिटी इन दैट पार्ट ऑफ द वर्क. We are now, of course, we are doing a lot of good work in the sense we are first time setting up 10,000, we will call it the MBAs, multi-brand auto sales stores. We call them MBA. But these MBAs, we sell everything in the country. बहुत सब कुछ सीखे. ये MBAs are selling point for us. So we are building these MBAs, multi-brand auto sale points. अभी हम सब कुछ बेचते हैं, ये बच्चे सबको बेचते हैं. 2-wheeler, साइकिल, इलेक्ट्रिक साइकिल, 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler, ट्रक, कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर्स. So we have tied up with everything where they can sell. That means they can generate a lead. Then we have the banks tied up. They can allow and sanction a loan. And then we have all the insurance company with us, so they can also do insurance. So in all the three activity, he generate income. एक गाड़ी का और एक vehicle के support में he earns about 10,000 rupees. What a model! What a transformation we can do it. And everybody today, Mahindra, Tata, everything is available in our ecosystem because they realize the potential for rural India. तो MBAs बनाते हैं. MBAs will be a great story for us. And as I said, our Grameen store is very unique and we built that largely for rural India. So everybody uses that. ये बच्चों ने इन बच्चों की ज़रूरत से समझ के हमने सीखा है और उसी को हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से गांव के एरिया में बाकी पार्टनर्स के साथ एसोसिएट करके किया. टुडे वी आर द लार्जेस्ट सेलर ऑफ टाटा वाटर इन द कंट्री. दैट इज डन बाय दीज गाइस. इनफैक्ट टाटा वाटर के पास वाटर नहीं है, हम तो इतना पिला दें गाँव वालों को, उनके पास पानी नहीं है बनाने के लिए, प्लांट नहीं है. बट दी अमेजिंग, एक बच्चा हमारा टी शर्ट बनाता है राजस्थान में, 23 years old. We have sold about 40,000 t-shirts of that guy. And his turnover last year is about 4 crores. वो गांव में है, छोटा सा गांव. 15 महिलाएं काम करती हैं and he is a phenomenal boy, phenomenal. अभी झंडे बेचते हैं हम, तिरंगा झंडा अभी हमने बेचना शुरू किया. And in the couple of days time with तिरंगे के चक्कर में, he is making tirangas, he makes tirangas and send it across. We have sold about 20,000 tirangas in the recent couple of days now. सारे देश में, सारे गांव में तिरंगा महोत्सव मनाएंगे, लेकिन हम करते सिर्फ एंटरप्रेन्योर के साथ हैं. हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, इन बच्चों को कैसे हम इनकम जनरेशन करें एंड हाउ डू वी ट्राई एंड डू इंटरमीडिएट रिमूवल. देयर नो इंटरमीडिएशन, हम इनसे डायरेक्टली डील करते हैं और इनकी मदद करते हैं. बट देर आर फिनोमिनल, इनसे इतनी लर्निंग है, इतना सीखा है इन बच्चों से और सीख करके के ऐसी इकोसिस्टम बनाए. थैंक यू सो मच.